हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज इस शुभ में हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे, हम उसकी प्रस्तुति करेंगे, उसकी सताइश करेंगे, उसके नाम को मुबारक जो है कहेंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को हम झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। Lord, we love you. Holy Spirit, we love you, Lord. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Holy Spirit, we worship you. खुदाए कदूस तेरा शुक्र करते हैं। खुदाए खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं। ओ रबाइला रसेथोरा फेंस्पिरशित। Hallelujah, 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 Lord. We love you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. हम अपने कैमरा को ओपन करेंगे और हम दुआ करेंगे। Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus, Jesus, we worship you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Your name is holy name. Braso rabate sem tabaras. Prasem tabaras shelarata sora fentas. Oh, yes, Lord. You are holy God. Yes, Lord. You are holy God. We love you. We love you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. तू पाक खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हम तेरी प्रस्तुति करने के लिए आए हैं, तेरी सताइश करने के लिए आए हैं। तू अजीम खुदा है, तू कादर मुतलिक है, तेरा शुक्र करते हैं। Oh, Jesus, we love you, Lord. We love you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Holy Spirit, we worship you. Re prasana yados. Holy prababa no see tarafes. Let's pray, everyone. Everyone, हम सब मिलकर दुआ करेंगे. Yes. Parafen tabara si talarashe. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. We love you. We love you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Holy. Yes, Lord. Yes, Lord. तू पाक खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि तू प्रस्तुति के लायक है। प्रासेना मी सोल रतायत रोसी तला। Let's worship him. Worship him. Yes, Lord. Yes. Praise and adoration. We praise you, my Lord. We praise you. Rishanda barapayat. Oh, yes, Lord, we praise you. We worship you, Lord. Oh, Rabayelero Santa Babarasita la Faros. Pramailio Hun Basiro Talfaro Sem Tabara Shaita Rafesanasi. Oh, yes, Lord, we love you. We love you, Lord. We love you, Jesus. Jesus, we love you. Holy Spirit, we love you, Lord. We worship you, Holy Spirit. We worship you. We worship you, Lord. Yes, praise and omamarito sita larabayaras. Oh, Jesus. Yes, Lord. You are holy God. You are holy God. Yes, Lord, we love you. Holy Jesus, we love you. Yes, Lord. Spero van sproiatalo fesanamiro elarashimas. Lae orafena means profan masita rafachairos. Elafan masora teis pirashi. You are holy God. Yes, Lord. Yes, seal robanea santanas. Patan spiratalashisanas. Satan virus. You are holy God. You are holy God, my Jesus.
You are holy, holy, holy. सब कहेंगे holy, holy, holy. You are holy God. Ripa paparasem tabayata sitanasi. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. You are holy God. You are holy, holy God, holy God, holy God. Riba sito rapayata. Holy, yes, you are holy. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, we love you. Holy Spirit, we love you. तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावन। तू पाक खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमें ये फजल बख्शा है कि हम तेरी हजूरी में आ सकें, तेरी हजूरी में झुक सकें, तुझे मुबारक कह सकें। खुदावंद, खुदावंद, आज शाम हम तेरी हजूरी में आए हैं। खुदावंद, तू अपने पाक कलाम को, अपनी बातों को, अपने भेदों को हम पर अया कर मेरे खुदावंद। अपने कलाम को हम पर उंडेल दे, अपने कलाम की बातों को हम पर उंडेल। रफासी तरफतनसी। और मेरे खुदावंद, इन बच्चों को खुदावंद, खुदा इस यूथ को तेरी हजूरी में लाता हूं यीशु के नाम में। खुदावंद, खुदा खुदावंद को इनको अपनी प्रस्तिश करना सिखा, इनको अपने सच्चे परस्तार बना, ताकि ये तेरी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। प्रोफेल बसियल विन मेखेर सतरी शतनास ओल राबायथिन मशेतन और सारफतन सोतनसी। तेरा नाम हम इनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। ये तेरे वफादार सिपाही बनकर खुदावंद, खुदा तारीकी की फौजों के सामने खड़े हो सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और कहें कि तू पाक खुदा है, यहोवा पाक खुदा है। एल फॉर रईस फेतना फादना मंदला रासी। लॉर्ड, इनको ये फजल बख्श दे कि ये गुनाह को कह सकें, यू आर रिजेक्टेड वन, यू आर रिजेक्टेड। ओ रीफे सीता लारा संतारासी। ओ माय लॉर्ड, to bless them, my Lord. You bless them, my Lord. Ripasita rafenayatolo. El manisoriatal pabriatemi miros petenafai. Lord, we love you. We worship you. We bless your holy name, my Lord. तेरा शुक्र करते हैं आज शाम। खुदावन, तमाम इन अजीजों के लिए, इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस यूथ के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, खुदावन, खुदा, जिन्होंने आज अपने वक्त को निकाला है कि वो तेरी हजूरी में आ सके, तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरे कलाम को सीख सकें, तेरे साथ वक्त गुजार सकें, तुझे जान सकें। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप यीशु के नाम में। आज तो खुदावंद यीशु मसीह को हम पर रिवील कर, ताकि हम यीशु को मुकम्मल तौर पर जो है जान सकें, ताकि हमारा प्रस्तिश करना, इबादत करना तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब खुश हैं? आर यू ओके? एवरीवन इज ओके? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड इज गुड गॉड। आप सबको याद होगा कि लास्ट वीक हमने खुदा उनके पाक कलाम में से वर्शिप के बारे में सीखा था। कोई बता सकता है कौन सा हवाला हमने जो पढ़ा था? एनीवन? जबूर 100। ज़बूर 100। वेरी गुड, वेरी गुड। ज़बूर जो है 100 पर हमने बात की थी। ज़बूर 100 में से हमने सीखा था कि खुदा हमसे क्या चाहता है, हमें किस तरह खुदावंद की प्रस्तिश करनी चाहिए। और ज़बूर जो है 100 की हमने पूरी जो हमने जो डिटेल को देखा था कि खुदा हमसे किस तरह बात करता है। और आज हमारे पास भी उसी से रिलेटेड हाउ टू वर्शिप द लॉर्ड गॉड, हम किस तरह खुदावंद यीशु की प्रस्तिश कर सकते हैं, हमें किस तरह उसकी प्रस्तिश करनी है, हमें किस तरह उससे दुआ करनी है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ माय फेवरेट जो है टॉपिक, और फर्स्ट टाइम मैं इसको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा फेवरेट है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। यू आर तो यू आर ओनली द वन जिनके साथ आज पहली बार मैं खुदा उनके इस पाक कलाम को, इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज का ये टॉपिक वर्शिप के हवाले से है, लेकिन जब हम वर्शिप की बात करते हैं तो वर्शिप करने से पहले या वर्शिप के मतलब को जानने से पहले
दो तीन चीजें बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी हैं जिनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। और आई थिंक यू आर द ब्लेसड वन। आप इस बात को, खुदावंद के इस कलाम को सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, हम मिलकर इसको डिस्कवर करेंगे। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप भी इसको जो है डिस्कवर करें ऑन योर ओन बिहाफ, खुदावंद के पाक इस कलाम के वसीला से, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। ऐसा नहीं कि किसी किताब में क्या लिखा है, इंटरनेट पे क्या लिखा है, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। हम अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम इसको डिस्कवर करेंगे कि खुदा उनका कलाम हमें किस तरह जो है वो गाइड करता है। खुदा ने जब बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से जो है निकाला, उसके बाद जब खुदा उनको मुल्क मिस्र से जो है निकाल कर ले आया, गुलामी में से निकाल कर ले आया, तो खुदा ने जो है मूसा को कहा कि तू मेरे लिए एक हैकल बना, टेबलनेकर जिसे हम कहते हैं, एक खैमा बना, ताकि मैं जो है तुम्हारे दरमियान जो है सुकूनत जो है कर सकूं। ये बात जो है खुदा ने जो है मूसा को जो है कही। और हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में इसके बारे में रेफरेंस कहाँ पर है, क्योंकि आजकल हम आखिरी दौर में हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जो तालीमात को लेके आ रहे हैं, बहुत सारी जो चीज़ें लोगों के साथ शेयर जो है की जाती हैं, तो और लोगों को जो है गुमराह जो है वो किया जाता है। और आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम खुदा उनके कलाम को पूरे तौर पर जो है जान सकें। एक्सोडस चैप्टर 25 उसकी वर्स 8। एक्सोडस खरूज की किताब 25 बाब उसकी 8वीं आयत। बड़ी खूबसूरत बात वहां पे लिखी है। अगर आप में से कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दे, उर्दू में या इंग्लिश में, वट जैसे आपको कन्वीनियंट है। हालेलुया। दिस इज द एविडेंस के खुदा ने मूसा को कहा कि वो उसके लिए एक मकदस जो है वो बनाए। मकदस का मतलब है पाक जगह, जिसे हम टेबल नेकर कहते हैं, जिसे हम अपनी जुबान में आजकल के दौर में इसको हम चर्च कहते हैं। हम चर्च कहते हैं, लेकिन दैट इज अ टोटली अ डिफरेंट मीनिंग। चर्च का मतलब है होली गैदरिंग, खुदा के लोग जहां पर इकट्ठे हों, वो है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है अपना जो है डिफरेंट है। यहाँ पर लिखा है, जी प्लीज एनीवन, अगर कोई पढ़ना चाहता है इंग्लिश में या उर्दू में, आई एम गुड विद बोथ लैंग्वेज। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। आमीन आमीन। यहाँ पर ये बात हमें हमारे सामने है। खुदा का जो है कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मेरे लिए, मेरे लोग मेरे लिए एक जो है मकदस जो है बनाए। मकदस का मतलब है पाक जगह। मकदस का क्या मतलब है जी? पाक जगह, ऐसी जगह जो कि पाक हो, जो कि जहां पर जो है पाकीज़गी हो, जहां पर जो है खुदा जो है रह सके। यहाँ पर लिखा है, और वो मेरे लिए मकदस जो है बनाए, और ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। यानी कि खुदा के रहने की जो है वो जगह, खुदा के रहने की जो जगह को जो है मकदस जो है वो कहा गया है। और जब हम मकदस के बारे में बात करते हैं, तो अभी जो मकदस जो है कैसा होना चाहिए। अभी हम अपने चर्च में आप जाते हैं, तो चर्च में जाने के बाद आप देखते हैं कि सामने जो है क्रॉस लगी होती है, वहाँ पर एक जो है पुरपट होता है, वहाँ पर एक डाइस पड़ा है, साथ में जो वर्शिप के इंस्ट्रूमेंट जो है वहाँ पे जो पड़े हैं, ऐसे ही है ना। सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, माइक लगे होते हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत सारी जो है चीज़ें वहाँ पर आपको दिखने को मिलती हैं। और वो सारा मिल मिला के एक मकदस जो है बनता है। अगर आप सारी चीज़ें वहाँ से बाहर जो है निकाल दें तो क्या होगा? अगर आप वहां से सारी चीजों को बाहर निकाल दें तो वहां पर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। वहां पर वो मकदस नहीं जो है वो जो है बन सकता। वो जो है मकदस नहीं जो है बन सकता। और मकदस की अगर आप उसकी ट्रांसलेशन देखें, तो वहां पर जो उसको हम टेम्पल भी कहते हैं, होली प्लेस भी कहते हैं, सीक्रेट प्लेस भी कहते हैं। और वो जगह जहां पर यहोवा पा खुदा सुकूनत करता है, ये इसका मतलब है मकदस का।
अगर आप इसकी इसकी ट्रांसलेशन पे अगर आप गौर करें तो खुदा का जो है पाक कलाम हमें जो है ये बताता है। और खुदा की वर्शिप जो है कहाँ पर होनी चाहिए? जहां पर वो है। लोग क्या करते थे? खुदा की वर्शिप करने के लिए टैबरनेकर में जाते थे। जैसे कि हम एवरी एवरी जो संडे हम जो है खुदावंद की जो है वर्शिप करने के लिए एक गैदरिंग के तौर पर चर्च में हम जाते हैं। वो जगह, वो टेम्पल, वो मकाम जहां पर हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, वो जगह जहां पर हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसकी हमद के गीत गाते हैं। क्या कभी ऐसे हुआ है कि हम अपने काम पर गए हो तो हम वहां पर जाके काम ना करें तो वर्शिप कर रहे हो? बिकॉज दैट इज द स्पेसिफिक या प्लेस। खुदा ने जो है मूसा को कही कि तुम मेरे लिए जो है बनाना, ताकि मैं तेरे इन लोगों के दरमियान सकूनत कर सकूं। खुदा के रहने की जो है वो जगह है जहां पर जो है खुदा जो है रह सके। और खुदा ने ये बात स्पेसिफिकली उनसे कही, और वो मेरे लिए एक मकदस जो है बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं, मेरे लिए टेंपल बनाए। आज की लैंग्वेज में हम उसको चर्च कहते हैं। मेरे लिए एक चर्च बनाए जहां पर मैं रह सकूं, मेरे रहने की जगह, मेरे लिए घर बनाओ ताकि मैं वहां पर जो है रह सकूं। अभी अभी यहां पर जो है सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने उनको ऐसा जो है क्यों कहा? आवर गॉड इज बिग गॉड। आवर गॉड इज बिग गॉड। बी केयरफुल, आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बाद में आप मुझसे जो कह सकते हैं, आप लिख लें उसको, आप मुझसे आप बाद में आप शेयर जो कर सकते हैं। आप देखें कि खुदा ने जिसने ये कहा कि तुम मेरे लिए एक मकदस जो है बनाना, उसी खुदा ने इस जहान को जो है क्रिएट किया। इस दुनिया को उसने जो है क्रिएट किया। आसमान और जमीन उसने जो बना दिए। उसने कहा कि जो है वो सूरज आ जाए, चांद आ जाए, सितारे बन जाएं, जमीन बन जाए। जमीन के ऊपर जो था वो पानी था। जमीन के ऊपर पूरा जो है पानी पानी था। खुदा ने हुक्म दिया, जो है पानी सारा एक जगह पर जाकर जो है इकट्ठा हो गया। हाउ बिग गॉड इज। और वही खुदा जो इस जमीन को बना रहा है, इस कायनात की तखलीक कर रहा है, वेयर ही वॉज एट दैट टाइम व्हेन ही वॉज या सेइंग कि जमीन बन जाए, आसमान बन जाए, फिजा बन जाए। बिकॉज ही वॉज समवेयर एल्स, बिकॉज ही इज इटर्नल गॉड। ही इज इटर्नल गॉड, ही लिव इन इटर्निटी। खुदा जो है वो हमारा इटर्नल गॉड है। वो जो है इस जहानों से बड़ा खुदा है। और वही खुदा जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, उनको कहता है कि तुम मेरे रहने के लिए जगह जो है बनाओ। खुदा कैसे वहां पर रह आप जो है वहां पर जैसे समा सकता है? ऐसे ही है ना? खुदा जो है कैसे वहां पर आके जो वहां पर आके जो है रह सकता है? इसी बात को हम जो है डिस्कवर करेंगे कि खुदा ने उनसे ये क्यों कहा कि तुम मेरे लिए घर बनाओ, तुम मेरे लिए एक मकदस जो है बनाओ। और जब उसने घर बनाने की बात की, एंड ही गेव द फुल प्लान कि मैं कहां पर रह सकता हूं। क्योंकि जो हमारा जो खुदा है, ही इज बिग गॉड, ही इज होली गॉड, वो पाक खुदा है। और उसने हुक्म दिया कि तुम मेरे लिए एक मकदस जो है बनाना, और मैं उनके दरमियान सुकूनत करूंगा, उन लोगों के दरमियान। और वो खेमा, वो जो उन्होंने जो जब उन्होंने जो था बनाना था, खुदा ने उनको उसका पूरा नक्शा दिया। और इसी चैप्टर की 9वीं आयत पे अगर आप जब पढ़ सकते हो तो आप पढ़ दो। अब इससे पहले आपने 8वीं आयत को पढ़ा है, अभी इसके बाद जो 9वीं आयत है, 9वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अब्राहम, आपके पास आपकी बाइबल है? हाँ जी। ओके। सो आप इसके बाद ये पहले जो कोई भी उर्दू में पढ़ेगा उसके बाद आप इसको इंग्लिश में आप पढ़ोगे। एक्सोडस चैप्टर 25 एंड वर्स 9। एक्सोडस सेकंड बुक है बाइबल की, ओके, फ्रॉम ऑल टेस्टामेंट। 9वीं आयत। जी, वर्स। और और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। आमीन, आमीन। और खुदा ने
जो है उसको कहा कि जैसा तुझे मैं दिखाऊंगा, जो नमूना मैं तुझे दूंगा, जो ब्लूप्रिंट मैं तुझे दूंगा, जो नक्शा मैं तुझे दूंगा, उसी के मुताबिक जो है बनाना है। हाँ जी, वो जी अब्राहम जी, प्लीज आप अभी इसको रीड करें इंग्लिश में। You must make it according to all that I show you, the pattern of stubbornness as well as the pattern of furnishing. आमेन, आमेन। खुदा ने उनको कहा, और मस्कन और उसके सारे सामान का नमूना, सारा कुछ, according to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments, so thereof even so shall you make it। पूरा जो है पैटर्न खुदा ने उसको जो है दिखाया। खुदा ने उसको जो है मूसा को जो है खुदा ने पूरा नमूना उसका जो है दिखाया कि मैं, मेरा जो है रहने की जगह जो है स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी भी आपके सामने जो है जिक्र किया कि हमारा खुदा ही इज बिग गॉड, ही इज होली गॉड। वो किस तरह इंसान के हाथों की बनाई हुई जो है चीजों में रह सकता है। इंसान जो कि खुद नापाक है, जिसके इरादे खराब हैं, जिसके अंदर हर वक्त सरकशी रहती है, खुदा उसे कह रहा है कि तू मेरे लिए मेरा मस्कन जो है बनाना, वो पैटर्न जो मैंने तुझे जो है दिया है उसी के मुताबिक जो है बनाना। और जब हम पैटर्न की बात करते हैं इसका मतलब है स्ट्रक्चर। खुदा स्ट्रक्चर देता है, इमेज। खुदा ने जो है मूसा को सब कुछ जो है दिखाया। अभी सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने उसको जो कब दिखाया, किसी को मालूम है कि खुदा ने उसको जो कब जो है ये दिखाया था? एनीवन? व्हेन ही, जब वो जो है आसमान पर अपना सॉरी जो है अपना जब जो है पहाड़ पर गया था, जब जो है मूसा जो है पहाड़ पर जो है गया, 40 दिन 40 रात खुदा के साथ रहा। एंड ही सॉ दैट कि खुदा कहां पर रहता है। खुदा ने उसको सारी बातें सिखाई वहां पर, उसने खुदा ने उसको जब दिखाया कि मैं यहां पर रहता हूं, मैं पाक खुदा हूं। खुदा ने अपने आप को उस पर जाहिर कर दिया। खुदा ने उसको जो दिखाया कि तुम्हें इस घर को, इस मस्कन को जो है कैसा जो है वो बनाना है। इस टेंपल को, इस टैबरनेकल को तुमने कैसा जो है बनाना है। मस्कन, बड़ी खूबसूरत बात है इसकी। जो जो वर्ड यहां पर मस्कन लिखा है, हिब्रू में भी ये मस्कन ही है। हिब्रू में भी इसको जो मस्कन ही कहते हैं, हिब्रू लैंग्वेज में। वी डोंट नो हिब्रू लैंग्वेज, बट इसको हिब्रू लैंग्वेज में ही मस्कन भी कहते हैं। ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह, जहां पे आप रेजिडेंट हैं, जहां के आप रहने वाले हैं। और इसकी इसका जो एक बड़ी खूबसूरत बात यहां पर जो मैं भी देख रहा हूं, वो ये है, इसका मतलब है ग्रेव। टेंपल का मतलब है ग्रेव। क्या कभी किसी ने जो है अपना जो है कहा है कि मैं जो है ग्रेव में रहता हूं? नहीं, हम कहते हैं हम जो अपने घर में रहते हैं। हम इस वर्ड को यूज नहीं करते, लेकिन ये वर्ड जो है तशबीहन जो है इसके साथ भी, इसकी जो एटमोलॉजी है, इसके जो रूट है, इसके साथ भी हैबिटेशन, रहने की जगह, ग्रेव, जहां पर जो है एनिमल्स जहां पर जो है रहते हैं। God is good God. He's amazing God. He always yeah, reveal himself in different ways. Where the person, so where the humanity is not your thinking, God is yeah, revealing in that way. इसीलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है औरत से पैदा हुआ, इंसानी शक्ल इख्तियार की। वो खुदा ने अपने आप को इंसानी शक्ल में लाया और उसने अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया। हमारी हमारी जो है निजात की खातिर उसने अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया। या बिकॉज ही इज अमेजिंग गॉड, वो अजीब खुदा है। और अभी हमारा ये सवाल था कि खुदा ने मूसा को जो है क्यों कहा कि तुम जो है मेरे लिए एक मकदस को जो है अब जब बनाओ। अभी आपने गौर से इसका पर्पस आपने जो सुनना है कि व्हाट वाज द पर्पस।
यहां पर ऑलरेडी जो लिखा भी है, जैसा कि एक्सोडस उसका उसका चैप्टर 25 उसकी वर्स 8 में आपने जो पढ़ा कि मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत करूंगा। और खुदा ने मूसा को कहा कि तू मेरे लिए एक मकदस जो है बना, ताकि मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत कर सकूं, ताकि मेरी हजूरी, खुदा की हजूरी उस मस्कन में हो सके। आने वाले हम दिनों के अंदर हम इसके ऊपर और गौर करेंगे कि जिन चीजों से यह बनाया गया, उनका उनका जो पर्पस क्या था, उनका जो मकसद क्या था, कि मैं तुम्हारे दरमियान रह सकूं, ड्वेल कर सकूं, मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत कर सकूं, मेरी हैबिटेशन, मेरा जो है रहना जो है तुम्हारे जो अपना जो दरमियान हो, जबकि हमारा खुदा आसमानों पर जो है जो अपना जो है रहता है, उसको कोई शख्स जो है नहीं देख सकता। खुदा ने उससे कहा कि तू मेरे लिए मस्कन बना, ताकि मैं तुम्हारे दरमियान जो है रह सकूं, मेरी तुम्हारे साथ फेलोशिप हो सके। वही बात जिस तरह जो है खुदा आदम और हवा के साथ रखता था, इसी तरह जो है खुदा ने मूसा को कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान रह सकूं, मेरी तुमसे फेलोशिप हो सके, मेरा तुमसे गहरा जो है ताल्लुक जो है बन सके। खुदा ये चाहता था कि वो लोगों के साथ इंटीमेट जो है फेलोशिप के अंदर आए, गहरा जो है ताल्लुक एक बन सके, जैसा आदम का और खुदा का था जब गुनाह से जो है पहले, जब तक कि आदम की जिंदगी में जब गुनाह नहीं आया। और ये जो रिश्ता है, ये जो इंटीमेट जो फेलोशिप है, ये जो है ये बड़ी जो कॉन्फिडेंशियल है। ये फेलोशिप जो है ओपन फेलोशिप नहीं है कि जिस तरह हम जो है चर्च जाते हैं, ऊपर बैठ के हम वर्शिप करते हैं, बाद में हम नीचे जाते हैं और नीचे हम जो है बैठ के चाय पानी की रफाकत रखते हैं, खाना खाते हैं। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ योर फेलोशिप। दिस इज द सीक्रेट फेलोशिप, कॉन्फिडेंशियल फेलोशिप, जो खुदा आपके साथ, उन लोगों के साथ जो रखना जो है, जो अपना जो चाहता था, जो बनी इसराइल के साथ। इसलिए जो है खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे लिए एक मस्कन जो है तैयार जो है करो, ताकि जो है खुदा की फेलोशिप हो सके, खुदा उन लोगों के दरमियान जो है रह सके, और खुदा उनसे बात कर सके, खुदा अपनी बातें उन पर जो जाहिर जो है कर सके, ताकि लोग उसकी प्रस्तिश कर सके, ताकि जो लोग उसको मुबारक कह सके। दैट वाज द पर्पस। तो खुदा ने जो है मूसा को कहा मेरे लिए मस्कन बना, ताकि जो है खुदा वो हमारे दरमियान, उन लोगों के दरमियान जो है रह सके, ताकि वो खुदा के जो क्लोज हो सके, खुदा की नेचर को समझ सके कि हमारा खुदा पाक खुदा है। दैट वाज द पर्पस। दैट वाज द पर्पस कि खुदा उन पर अपनी जो क्लोजनेस के, कि तुम मेरे नजदीक जो है किस तरह आ सकते हो, तुम मेरे नजदीक या किस तरह आ सकते हो। खुदा ने उनको साबित करने के लिए, उनको जाहिर करने के लिए खुदा ने मूसा कहा कि तुम मेरे लिए टेबरनेकल जो है बनाओ, तुम मेरे लिए एक मस्कन जो है बनाओ, मेरे लिए रहने की जगह जो है बनाओ, ताकि मैं तुम्हारे दरमियान जो है रह सकूं। सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन। दूसरी रीजन क्या है कि खुदा ने इसलिए मस्कन जो है बनवाया, ताकि वो हमें वर्शिप का पैटर्न दे सके, वर्शिप का पैटर्न दे सके। जैसा कि अभी हमने कलाम मुकद्दस के अंदर जो पढ़ा है, एक्सोडस जो 25 उसकी वर्ष जो 9 में, कि उस सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊंगा, पैटर्न। ये जो टैबरनेकल है, ये जो मस्कन है, दैट इज द सिंबल ऑफ द वर्शिप, कि हम किस तरह खुदा की वर्शिप कर सकते हैं। उसने प्रोवाइड किया, उसने हमें, उसने जो है पैटर्न दे दिया कि हम किस तरह वर्शिप कर सकते हैं, और वो पैटर्न उसने रिवील किया खैमा के वसीला से, टैबरनेकल के वसीला से, जो मूसा ने जो है बनाई। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ हाउ दैट्स वर्क, के कलाम मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या कहता है। टैबरनेकल जो बनाने का जो मंसूबा था, वो ये था कि लोग खुदा की पाकीज़गी तक जो है जा सकें,
लोग खुदा तक उनकी, ताकि लोग इस बात को जान सकें कि उनकी रसाई खुदा तक किस तरह हो सकती है। मैंने आपके साथ पहले जो है जिक्र किया कि खुदा ने नमूना जो है उसको जो कब दिखाया, अब्राहम, क्या आप इसको पढ़ सकते हो इंग्लिश में? एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स जो 40, एक्सोडस 25 वर्स 40, बड़ी क्लैरिटी के साथ, कहीं आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इस बात को समझ सकें कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यस प्लीज। Be careful to make them accord according to the pattern of you have been shown on the mountain. हालेलुया। कलाम में उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, वहां पे लिखा है, and look that thou make them after their pattern which was showed thee in the mountain। और देख तू उनको ठीक इनके नमूना के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना। खुदा ने ऑलरेडी उसको ये नमूना रिवील कर दिया था पहाड़ पर, जब वो खुदा के पास गया था, 40 दिन 40 रात वो खुदा के साथ था, तो खुदा ने उसको पूरा स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया, खुदा ने उसको वहीं पर जो है दिखा दिया था। और यहां पर ये जो नमूना खुदा ने उसको जो बनाने के लिए कहा, दैट इज एक्सप्लेन गॉड वर्शिप, कि आप किस तरह, बनी इसराइल जो है किस तरह खुदा के पास जा सकते थे। ऐसे नहीं कि मैं बस सोया हुआ उठा हूं तो मैं सीधा जाकर खुदा की हजूरी में जाकर जो बैठ जाऊं, मैं काम से आया हूं तो सीधा जाकर खुदा की हजूरी में जाकर जो बैठ जाऊं, मैं अभी अभी मैंने जो अभी जब मैंने 4-5 जो गुनाह किए हैं, अभी मैंने कुछ गलत काम किया है तो मैं सीधा जाके खुदा की हजूरी में जाकर बैठ जाऊं। नो, दैट वाज नॉट ये पॉसिबल। इवन दो उस दौर के अंदर अगर कोई शख्स गुनाह की हालत में हैकल में जाता था तो वो मर जाता था, जो होली प्लेस पे जाता था, क्योंकि खुदा पाक है, जहां पर खुदा रहता है वहां पर नापाक चीज नहीं रह सकती। दैट वाज द रीजन कि खुदा ने आदम और हवा को अपनी हजूरी से निकाल दिया। दैट वाज द रीजन, क्योंकि खुदा वहां पे नहीं रह सकता जहां पर नापाकी है। हम खुदा की जब प्रस्तिश उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम जब पाक नहीं हो जाते, जब तक हम नापाक हैं, नापाकी में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी वर्शिप करना खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं ठहर सकती। यही हमारा जो टॉपिक है ना असल में, कि हम खुदा की जो प्रस्तिश के बारे में हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह खुदावन की प्रस्तिश जो कर सकते हैं। अगर हम नापाकी की हालत में हैं, अगर हम गाली गलोच करते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, फरेब देते हैं, हरामकारी करते हैं, जनाकारी करते हैं, अगर हम गंदी फिल्में देखते हैं, अगर हम अगर 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 हमारी आंखें जो है नापाक हैं, सो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट वी कैन सी गॉड, बिकॉज ही इज होली गॉड। यही चीज, यही जो है नमूना खुदा ने उसको जो है दिखाया ताकि वो उन पर जाहिर कर सके कि तुम किस तरह मुझ तक पहुंच सकते हो। खुदा ने उनको पैटर्न दिया, और वो पैटर्न क्या था? सेक्रीफाइस करना है, पहले आपने हैकल के अंदर जाना है, उसके आउटर कोर्ट से अंदर आना है, सेक्रीफाइस करनी है, वहां पे आपने अपने आप को जो है धोना है, फिर इंटरसेशन आता है, फिर उसके बाद आप आगे जो है बढ़ते हो। और ये जो स्ट्रक्चर खुदा ने जो है मूसा को जो है दिखाया, ये जो बात अभी मैंने आपको की, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको आगे जाकर, आने वाले जो दिनों में भी, अगर आए नहीं तो आने वाले दिनों में, कि किस तरह इट्स लुक लाइक कि वहां पर हम क्या आज जो है किस चीज को जो है जाहिर करता है। कितनों ने आज की पोस्ट देखी है अपना जो व्हाट्सएप के ऊपर मैंने जो शेयर की थी? हालेलुया, सब ने नहीं मुझे लगता है वो देखी। अगर आप उस पोस्ट को जो है देखें तो उस पोस्ट के ऊपर टैबरनेकल नहीं है, वहां पर जो सलीब है। उस पोस्ट के ऊपर हैकल नहीं है, चर्च नहीं है, अहद का जो संदूक नहीं है, वहां पर नजर की हुई जो है अपना जो रोटियां नहीं है, चिरागदान नहीं है, ऑल्टर नहीं है, वहां पर जो सलीब है। क्योंकि ये नक्शा जो खुदा ने मूसा को जो है दिखाया,
दैट वाज अबाउट हिम, कि कहां पर खुदा रहता है। खुदा पाकीज़गी का खुदा है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है इब्रानियों में, अलोहियत की सारी मामूरी खुदावंद यीशु अल मसीह में सुकूनत करती। अलोहियत, डीएटी, खुदावंद यीशु मसीह पाकीज़गी का मंबा है। और ये नक्शा जो था, ये खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। उसका फोर शैडो था वो, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम में आके रह सके। पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात कही। पौलुस रसूल ने कहा, तुम खुदा का मकदस हो। याद है किसी को? पौलुस रसूल ने कहा कि यू आर द होली टेम्पल। हमारा ये बदन खुदावंद यीशु मसीह की टेम्पल है। हमारा ये बदन यीशु मसीह का चर्च है, जहां पर यीशु मसीह रहता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों में रहता है और हमें उसकी वर्शिप करनी है पाकीज़गी के साथ। यहां पर हम देखते हैं, जब सेक्रीफाइस की बात करते हैं, पौलुस रसूल ने भी हमें इसके बारे में सिखाया। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसका जो तीसरा जो है यहां पर जो पॉइंट है, कि ये फोर शैडो है यीशु अल मसीह का। ये फोर शैडो था। खुदा ने जो पूरा जो नक्शा एक बताया, वो फोर शैडो था खुदावंद यीशु अल मसीह का, उसकी जो क्रॉस का, उसकी पाकीज़गी का, कि किस तरह यीशु मसीह ने अपने आप को जब कुर्बान किया। और मैं ये बात आपको इसलिए आपको आपको मैं बता रहा हूं, ताकि जब मैं आपके साथ उस पिक्चर को शेयर करूं, उस बात को शेयर करूं, तो आप समझ सकें, आप उस वक्त समझ सकें कि क्रॉस क्या है। यहां पर मुझे क्रॉस कहां पर जो है नजर आ रही है। ये फोर शैडो था यीशु अल मसीह का, कि किस तरह यीशु मसीह ने अपने आप को जो कुर्बान कर दिया और खुदा के जो दाहिने हाथ जाकर जहां बैठ गया, मर्सी सीट पर, जहां पर खुदा बैठा है, जहां से वो हमारी शफायत करता है, हमारे लिए इंटरसेशन करता है, हमारे लिए रहम के लिए दुआ करता है बाप से। आई नो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ द डेज एवरी वन इज द फुल ऑफ विजडम। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आजकल बड़े बुजुर्गों को नहीं पता, लेकिन यू गाइस यू नो अबाउट दैट, बिकॉज यू हैव या रिसर्च ऑन इट। आपने उसको सर्च किया है, आपने उसके ऊपर रिसर्च की है, आपने उसको फाइंड किया है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, आजकल मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है। आजकल हम किस तरह अपने लिए वे तलाश करते हैं। अगर कोई बच्चा लिख नहीं सकता, तो वो बोल के अपनी फेवरेट वीडियो निकाल लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जब बोलूंगा तो ये वीडियो सामने आ जाएगी। मैं इस करेक्टर का नाम लूंगा तो उसकी वीडियो यूट्यूब पर या किसी भी जगह पर आ सकती है। एंजेलिका, आपको समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ये जो मस्कन था, ये यीशु मसीह का जो फोर शैडो था, उसकी यीशु मसीह को बयान करता है। क्योंकि गौर कीजिएगा, बड़े दिस इज ऑल्सो रेवलेशन। जब यीशु मसीह ने आना था, यीशु मसीह के आने से पहले हैकल का जो कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गया। जब यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान कर दी, व्हेन ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ, उसके बाद हैकल को जब बर्बाद कर दिया गया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, आप लोगों ने जब पढ़ा भी होगा, आप सब ने, आपने जो सुना भी होगा, आप जो अपना छोटे बच्चे उन्होंने नहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन आपने जो अपने बड़े उन्होंने सुना है, कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तो हैकल का जो पर्दा था बीच में से फट गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, कि खुदा की हजूरी जमीन पर अब नहीं रही। नाउ ही वांटेड टू लिव इन यू। ये फोर्थ शैडो था। ये जो हैकल थी, स्ट्रक्चर था, ये खुदा के पास जाने के स्टेप्स थे, कि आप किस तरह खुदा की हजूरी में दाखिल हो सकते हैं। देयर वाज अ 7 steps टू गो। देयर वाज अ 7 steps to go into the presence of God according to the tabernacle.
किस तरह आप उन स्टेप से होते हुए खुदा की हजूरी में, जहां पर वो रहता है, जहां पर उसकी जो है पाकीज़गी है, जहां पर खुदा की मौजूदगी है, वहां तक आप किस तरह जो है जा सकते हैं। और बड़ा जो है प्रोफेटिक जिसका जो है एक स्क्रिप्चर है, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अपना इब्रानियों की किताब उसका 9 बाब 11 से 15 तक अगर आप जो है पढ़ें, तो पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से जो है बयान किया है कि यीशु मसीह किस तरह हमारे लिए सरदार काहिन बनकर आया, और उसने आकर हमारे लिए जो है कुर्बानी दे दी। और इससे पहले क्या होता था कि पहले जो थे वो काहिन थे, वो साल में एक मर्तबा जो है हैकल के पाक तरीन मकाम तक जो जा सकते थे, ताकि जब पूरी उम्मत के जो है गुनाहों को जब बख्शवा सकें। लेकिन मेरा और आपका यस्सु अल मसीह, मेरा और आपका खुदावन, मेरा और आपका नजात जो है दहिंदा, हमारे लिए एक ही बार जो है सलीब पर जो है चढ़ गया, और उसने अपने खून से हमें धोया, और अपने अजली रूह के वसीला से हमें खुदा के सामने बेऐब जो उसने अपने आप को जो कुर्बान कर दिया, और हमारी शिफायत करने के लिए आज भी जो है वो जिंदा है, ताकि हमें मिरास दे सके। ये आप कलाम को अगर आप जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हिब्रू जो चैप्टर जो 9 वर्स 11 to 15, आप नोट कर ले। मे बी नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कस हम करेंगे कि आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर आपने जब पढ़ा है तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं। ओके, ये जो था फोर शैडो था खुदावन यीशु मसीह का। फिर इसके अंदर जो है चौथी बात जो है बड़ी खास है, ताकि खुदा ने क्यों कहा कि मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान रखूंगा, तुम मेरे लिए क्यों मेरे लिए घर बनाओ, मैं क्यों तुम्हारे दरमियान जो अपना जो रहना जो चाहता हूं, ताकि हम खुदा की होलीनेस को समझ सकें, उसके ऑर्डर को, उसके हुक्मों को समझ सकें कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारा खुदा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हमें किस तरह बनने की जरूरत है। अगर आप खुदा की परस्तिश करना चाहते हैं, तो आपको किस तरह अपने आप को ढालने की जरूरत है, आपको जो किस तरह अपनी जिंदगियों को बनाने की जरूरत है। ये भी, इसको जानने के लिए, इसकी पूरी जो डिटेल को जानने के लिए आपको जो है एक्सोडस जो अपना जो 25, 26, 27, 28, 29 अप टू 31, ये चैप्टर अगर आप जो है पढ़ें, सो यू विल गेट कंप्लीट जो है डिटेल। लेकिन इसकी समरी मैं आपको बताता हूँ क्या। अपना खुदा ने लोगों से कहा, अपना मूसा से कहा कि तुम मेरे लिए एक जो मस्कन जो बनाओ, ताकि खुदा अपनी पाकीजगी को वहां पर जो है दिखा सके, अपने इंसाफ को वहां पे जो है अपना जो है दिखा सके। पाकीजगी, यस, एट होली प्लेस जो है खुदा वहां पे जो है थोड़ा अपना रहता था। और जस्टिस क्या है कि अगर कोई शख्स गुनाह करेगा तो वो मरेगा, अगर कोई शख्स गुनाह की हालत में अंदर जाता था तो वो शख्स जब मर जाता था। जस्टिस खुदा का वहीं पे जो है खुदा इंसाफ जो कर देता था। एंड मर्सी, रहम, रहम किस वसीला से कि जब सरदार काहिन अंदर जो है खून लेके जाता था, वो खून अप्लाई करता था पाक तरीन जब मकाम में अहद के जो संदूक के ऊपर, तो वो उसके वसीला से खुदावंद जो अपना जो खुदा है वो उम्मत के गुनाहों को मुआफ कर देता था। लेकिन वो कोई वायलेशन को बर्दाश्त नहीं करता था। खुदा ने उनको कानून दिया, ऑर्डर दिया, खुदा ने उनको एक राह बता दी कि तुमने इस तरह मेरे पास आना है। और खुदा ने मूसा से कहा कि तू इस कौम को जब समझा दे, ऐसा ना हो कि मैं इनको जब मार डालूं। ये ओवरऑल जो है खुदा ने उनसे उनसे जो है बात की। सो दैट वाज द बेसिक जो पर्पस। इन समरी अगर आप देखें इसकी, जो इसको अगर आप जो समराइज आप करें, तो हम हम ये देख रहे हैं कि खुदा ने जो है क्यों कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत करना चाहता हूं, कि खुदा हमारे दरमियान पाक तरीन मकाम में रह सके। और खुदा जो आसमानों का खुदा है, जो आसमानों पे सुकूनत करता है, वो इंसानों के दरमियान आकर जहर जहर अपना जहर रह सके, ताकि वो हम पर रिवील कर सके, ताकि वो हम पर अपनी अपनी हजूरी को जाहिर कर सके। खुदा लोगों के दरमियान रह सके, ताकि लोग उसकी हजूरी में आए पाकीजगी के साथ। खुदा ने उसी वक्त उनको लॉ दिया। लॉ उसी वक्त आया ना, जिसको हम जो शरीयत हम बोलते हैं, जिसमें 10 हुक्म भी हैं, जिसके अंदर 10 हुक्म भी हैं। और मैं आप सबसे ये
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर 10 हुक्मों के बारे में जानें। 10 कमांडमेंट्स यू हैव टू लर्न, you have to learn. We will so that will be maybe a one day we will ask everyone have everyone you should know that where it's written, and what are these 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 30 हैं, I don't know. You have to find out कितने कितने जो है कमांडमेंट है। ओके, खुदा ने अपनी अपनी हजूरी को, अपनी प्रेजेंस को जो है रिवील किया इस मस्कन के वसीला से। खुदा ने अपने लॉ उनको दे दिए, अपने हुक्म उनको जो है दे दिए। खुदा ने उनको रहम का जो है तरीका बता दिया कि मैं तुम पर कब रहम करूंगा, जब तुम मेरे हजूरी में खून को जो है लेकर आओगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। दैट वॉज द पाथ ऑफ रिडेम्पशन। खुदा ने लोगों की रिडम्पशन का पाथ दे दिया, तरीकेकार उनको जो बता दिया कि तुम किस तरह रिडीम हो सकते हो, हमारी हमारी जो रिडम्पशन किस तरह हो सकती है। खुदा ने एक पूरा जो है पैटर्न जो है एक जो है दे दिया। आमीन। हमारा आज का जो क्वेश्चन क्या था, हमारा आज का जो अपना जो टॉपिक क्या था कि खुदा ने मूसा को जो है क्यों कहा कि तुम मेरे लिए टैबरनेकल बनाओ, तुम मेरे लिए क्यों टेंपल जो है बनाओ। और इसके अंदर हमने आज इन 4 बातों को जो है देखा है कि खुदा हमारे दरमियान जो है रह सके। खुदा बजा सॉरी, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं इसका मतलब है बनी इसराइल, बनी इसराइल के अपना जो दरमियान जो खुदा जो है रह सके, और खुदा हमें वर्शिप करने का पैटर्न जो है वो दे सके। इसका दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट इसका ये था कि ये फोर शैडो था यीशु मसीह के बारे में, इट्स रिवीलिंग या जीसस। और इसमें जो चौथी बात जो है कि खुदा हमें उन लोगों को, बनी इसराइल को पाकीज़गी का उनको एक पैटर्न उनको जो है दे सके, ताकि वो खुदा के जस्टिस को जान सकें, उसकी होलीनेस को जान सकें, उसकी मर्सी को जो है जान सकें, उसके रहम को जो है वो उसको जो है जान सकें। क्योंकि उस वक्त अगर कोई गुनाह करता था तो वो जो है वो कुर्बानी देता था, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिए थे अगर कोई किसी का जो है गुनाह करे, कोई कत्ल करे, कोई भी ऐसा उससे जो है गुनाह हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है उनको बैल, बकरा, भेड़ उनको जो है जबा करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू देयर सिन। जितना बड़ा जो है सिन उतनी ही बड़ी जो है कुर्बानी। लेकिन हाउ ब्यूटीफुल आवर गॉड इज, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो है कुर्बान हो गया, ताकि जो है मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी जो है दे सके। आमीन। हालेलुया। दिस इज द टाइम फॉर द क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो कह सकते हैं। एनीवन। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क? हालेलुया। अगर आपके पास कोई जो है क्वेश्चन जो है नहीं है, सो देन आई विल आस्क वन क्वेश्चन। वेयर इट्स या रिटर्न कि जो है खुदा ने जो है मूसा से कहा कि मेरे लिए खेमा बनाओ। जी जुमायरा। Exodus में। एक्सोडस और चैप्टर। चैप्टर नहीं मुझे याद। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम। अब्राहम। Exodus chapter 25, वर्स 9. ओके, यू आर वेरी क्लोज। जी हिमान। फरूज 25 बाब उसकी 8वीं आई। ओके, यू आर वेरी क्लोज। जी ईमान। आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी। वॉइस। यस। जी बोले। नो वॉइस। Exodus chapter 25 verse 8. ओके। जी रायन। रायन भी आज हमारे साथ हैं। जी रायन, आप अपना माइक जो खोलेंगे, इफ यू आर देयर। जी। जी, आप हमें बता सकते हैं कि
कि जो है कि अपना बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मेरे लिए जो है एक मस्कन को जो है बना? Exodus chapter 25 verse 10. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ईमान ने भी इस सवाल का जवाब जो है ठीक दिया। ईमान ने भी जो है इस सवाल का जो है जवाब जो है ठीक दिया। एंड अब्राहम एंड रायन, यू आर वेरी क्लोज। लेकिन वी हैव टू फोकस। और आप जब भी आप बैठें तो आजकल टेक्नोलॉजी है, आप ज़रूर इन हवालाजात को आप नोट करें। अपनी स्टडी में से थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर खुदावंद पर फोकस करें। ये दुनिया सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, लैपटॉप आपके आपके ख़त्म हो जाएंगे। एंड देर विल बी नो सोर्स ओनली फॉर गॉड। ओनली जो है अपना जो है खुदा जो है इस ज़मीन पर रहेगा, आसमान पर रहेगा, और आपके पास कोई सोर्स नहीं रहेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ये फोकस ऑन योर गॉड एज वेल, बिकॉज ही क्रिएटेड यू। उसने आपको बनाया है। लास्ट संडे को ये मैसेज था, ही क्रिएटेड यू। उसने आपको अपने लिए जो है चुना है ताकि आप उसकी हमद और सताइश करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे, और मैं चाहूँगा कि सब बच्चे बारी बारी जो है दुआ करें। अपना माइक जो है खोल कर सब बच्चे बारी बारी जो है अपना जो है दुआ करें। लंबी दुआ नहीं चाहिए, टू दी पॉइंट। आज के जो है कलाम के हवाले से जो है हम जो है दुआ करेंगे। आज आपने जो कलाम जो है सुना है उसके हवाले से जो भी आप दुआ करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट जस्ट या प्रोसीड फ्रॉम एनीवन। कोई भी एक, बगैर किसी, जब अपना विदाउट स्टॉप, जैसे ही एक बच्चा बंद करे दूसरा बच्चा उसको जस्ट स्टार्ट करे। हालेलुया। हु इज गोइंग टू स्टार्ट? हालेलुया, प्लीज गो अहेड। आए दुआ करें। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जला देते हैं, प्रशिश करते हैं कि तू पाक खुदा है, प्रशिश के लायक है। खुदा रहम करने वाला खुदा है। मैं बड़ी बरकत है तुझे आकर इस्तेमाल कर आज की तरह शुक्र अदा करते हैं आज के वक्त के लिए तूने हमें बख्शा खुदा कि तेरे हुजूर आ सकें, तेरे कलाम को सुन सकें। खुदा इस कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने खुदा अपने बंदा के वसीला से हमारे थ्रू खुदा तूने हमें तरह सिखाया। खुदा तो हमें बड़ी बरकत दे। खुदा के इस्तेमाल कर हमें अकल दिलाई दे। खुदा के इस कलाम को हम सही तरह सीख सके, समझ सके और इस पर करने वाले हो सकें। खुदा और हमें अकल दिलाई दे खुदा कि ये कलाम हम आगे जाके और भी खुदा स्प्रेड कर सकें। खुदा हम सबके साथ साथ रहे, हमें बरकत दे। अपने जनाब के इस्तेमाल कर खुदा जितने भी लोग इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं हम सबके साथ साथ रहे, सबको बड़ी बरकत दे। जनाब के इस्तेमाल कर सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जिलाले कदूस नाम के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है, सारी चीज़ों के लिए ज़िंदगी में जो तूने हमें बख्श दी है। हमारे सारे गुनाह माफ़ कर हम सारों के साथ रहे। तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। हम इस मीटिंग में आए, जो भी हमने आज सीखा है, दुआ करती हूँ कि हमें याद है, हमारे साथ साथ रहे, हम जिधर भी जाते हैं। दुआ मांगती हूँ, आमीन। कदूस 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 खुदा हम लश्करों के खुदा आसमान ज़मीन खालिक का मालिक बा खुदा तेरे था तुझे है तुझे आने वाला है बा खुदा। तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें मौका बख्शा ताकि हम एक दफ़ा फिर जूम के वसीला से तेरे कलाम को सुनने के लिए इकट्ठे हो सके खुदा। हम वापस करें तेरा शुक्र। खुदा हम बाप तेरा शुक्र तेरा मौका बख्शा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं बाप जी उनको मौका बख्शा ताकि वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सके और हासिल काम को सुन सकते खुदा। हम बाप हम दुआ करते हैं कि जो भी आज हमने सीखा खुदा हम बाप हमें हिम्मत और तौफीक बख्शना ताकि हम उसको हम अपनी ज़िंदगी पर अमल कर सकें और उसको आगे और लोगों तक पहुंचा सके खुदाम बाप। बाप जितने आज मीटिंग में आए थे खुदाम बाप उन सबके साथ साथ उनको बड़ी बरकत देना। सब चाप जिंदा चाहे नाम मांगते हैं। कदूस 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 खुदा खुदा आसमान और ज़मीन के खाक और बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे नाम में फतेह है, तेरे खून में फतेह है। तू जिंदा आसमानी बाप है, तू पैर करने में धीम है, तू शख्स का मुंह बाजी। तेरा शुक्र करते हैं बाजी के आज के दिन बाजी हम सब इकट्ठे है बाजी, और तेरे नाम को हम सब ने इज्जत और जला दिया बाजी। और आज का कलाम जो हम सब ने बाजी इसमें सीखा और सुना बाजी,
बाजी हमें बाजी 30 60 और 100 गुना फल लाए बाजी। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं बाजी। हम बाजी इस कलाम के वसीला से बाजी बरकत पाए बाजी। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे नाम में बाजी दुआ में पालते हैं। कदूस कदूस जिंदा आसमान बाबसमान तक तक दुनिया पर तेरी शक्ल तेरी तमलीक कर दुआ खुदाया मैं दुआ करता हूँ इस रूम इस क्लास में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए मैं दुआ करता हूँ जो अपने ब्यूटीफुल में अल्लाह कलाम बख्शा है खुदा मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं उनको बरकत दे, उनके साथ और उनके सारे गुनाह माफ कर दे। आमीन। तो उसी 10 महीने बाद समान तक मेरे पास चुके दुआ करती हूँ आज के दिन के लिए कदूस 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 करती हूँ इधर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए आज के कलाम के लिए तो करती हूँ इधर जितने लोग हैं उनके लिए उनको आप ब्लेस करो। आमीन। कदूस 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 कलाम करता आसमान और जमीन का खाला कर हमारे बाप जी आपके हजूर हम दुआ करते हैं, आपका शुक्र करते हैं कि हम आज के दिन इकट्ठा होकर आपके हजूर झुकते हैं। खुदाम आप आपका शुक्र करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। जो भी इधर लोग हैं उनको उनकी फैमिलीज को ब्लेस करना खुदाम बाप। जो भी आज हमने लर्न किया है वो खुदाम बाप उससे हमें बरकत पाना खुदाम बाप। सर जलाल आपके यशवा नाम में सब कुछ आपके संतोष वाली कदूस नाम में मांगते हैं। आमीन। खुदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ के लिए खुदा खुदा तो तूने आरे में बख्शा खुदा खुदा कि आज हम सब तेरे हुजूर झुके की जॉब दुआ कर सके खुदा 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 तूने आज हमें जो कलाम तूने आज हमें सिखाया खुदा 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 मैं चाहता हूँ कि वो कलाम आज हमें बहुत बरकत दे खुदा 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 ये सारा जलाल ये दुनिया और दुनिया की हर चीज में तेरे हजूर में ये खुदा 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 आज जितने भी लोगों ने ये मीटिंग ज्वाइन किया है खुदा खुदा मैं उन सब की तरफ से खुदा खुदा मैं कहता हूँ खुदा खुदा कि तू उन सबको बहुत बरकत देना खुदा खुदा और उन्हें जला दे खुदा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं आप सब के लिए जितनों ने आज दुआ की आई है। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ हम सब जो मिलकर जो करेंगे। और खुदावंद की जो सिखाई हुई जो है दुआ जो है कलाम मुकद्दस में कहाँ पे लिखी है इसको भी हमें सीखना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस जो है खुदावंद के अपने सिखाई हुई जो है दुआ को सही तरह से नहीं जो पढ़ते। खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुआ अपने शागिर्दों को जो सिखाई अभी अभी हम देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसको खोल सकते हैं जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी जो है 9वीं आयत से उसकी जो है 9वीं आयत से लेकर उसकी जो है 13वीं आयत तक है। 9 से जो है 13वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 टू या 13। अभी हम जो है खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल होंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी तेरी मर्जी वो जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे वो कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा और तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।